Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. Friends, I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYSE Economics Chapter 3A Part 5. In our last session, we have discussed one of the most important answer for 8 marks, and that is state and explain law of demand with schedule and diagram. Other things remain constant. The larger the price of a commodity, the smaller is the quantity demanded, and vice versa. It means higher the price, lower is the demand, lower the price, higher is the demand. That was simple explanation of law of demand. Friends, after that we have covered one schedule also, that is price and demand. When the price was ₹30, demand was 10 units. When the price falls from ₹30 to ₹10 per unit, demand rises from 10 units to 30 units. After that, we have covered one diagram in which we have explained DD is the demand curve, slopes downward from left to right. It has negative slope. Friends, for 8 marks answer, we have to write at least 2 sides of full step page. अब अगर आप ध्यान से लास्ट लेक्चर का अपना आंसर ऑब्जर्व करें तो यू विल ऑब्जर्व वन थिंग. स्टेटमेंट जो था 3 लाइन का, एक्सप्लेनेशन 2 लाइन का. अब 2 पेज तक हमें भरना था, इसलिए हमने उसको शेड्यूल बनाया, उसको एक्सप्लेन किया, डायग्राम बनाया, उसको एक्सप्लेन किया. टिल हाफ ऑफ द पेज इज रिमेनिंग. फ्रेंड्स, don't worry, there is one hidden word in our question. Before so many sessions I told you again and again repeatedly, repeat ऐसा कर करके समझाएगा. In microeconomics you should not start or you should not complete any law without assumptions. Repeat. In microeconomics you should not start or you should not complete any theory, any law without assumptions. ये बात मैं बार बार दोहरा चुका हूँ. According to बोर्ड स्पेसिमेन पेपर रूल, अगर assumption वर्ड मेंशन हुआ है तो you have to explain these points in detail. If question is silent about the word assumption, अगर assumption वर्ड मेंशन नहीं हुआ है, then too आपको assumptions के पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे. अगर क्वेश्चन में assumption वर्ड है तो डिटेल में एक्सप्लेन करो. अगर assumption वर्ड नहीं है तो सिर्फ पॉइंट्स हेडिंग्स लिख कर आ जाओ. विदाउट assumption आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ या कोई भी थियरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. ये अलाउड नहीं है. अगर आपने 1.5 पेज तक सब कुछ बनाया था और assumption के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो ये नहीं चलेगा फ्रेंड्स. यू विल गेट 0 मार्क्स. assumptions का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है that is already provided in our printed notes, printed book. जो नोट्स अपने पास है उसमें वो डिटेल आंसर है फॉर assumptions. फ्रेंड्स, आज मैं आपको assumptions के लिए एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, एक चीटिंग सिखा रहा हूँ. एवरी टीचर इज अ चीटर. ओके, और ये जो भी चीटिंग हम करेंगे इसका जो भी पाप लगे वो आपके सर पे, क्योंकि मेरे सर पे और भी बहुत सारे पाप नाच रहे हैं. ओके, तो ये चीटिंग जो है फ्रेंड्स, ये सीखने लायक चीटिंग है. हम एग्जाम के दिनों में एक आंसर पढ़ेंगे और उसमें से 2 आंसर बना पाएंगे. और अगर ये चीटिंग समझ में आ गई तो ऐसी चीटिंग हम बार बार कर पाएंगे, बहुत सारे आंसर में कर पाएंगे. लेट मी रिमाइंड वन थिंग. ये assumption वर्ड हमने डियर फ्रेंड्स लॉ ऑफ DMU में भी देखा था. assumptions to law of DMU: continuous consumption, uniform commodities, cardinal measurement, rational behavior, reasonable size and no change in preference of the consumers. उस वक्त ये बार बार कहा गया था कि अगर ये 6 assumption पूरे हो तो लॉ ऑफ DMU इज वैलिड. अगर ये 6 assumption गलत हो गए तो लॉ ऑफ DMU विल बिकम इनवैलिड.
Similarly, today we have the topic assumptions to law of demand. What was law of demand? Higher the price, lower is the demand. Lower the price, higher is the demand. प्लाज्मा टीवी 1.5 लाख रुपए का है तो उसका डिमांड कम है क्योंकि वो महंगा है. लोटस है 60 रुपया, 60 रुपया, 60 रुपया. लोटस है 60 रुपया. लेडीज सिग्नल, उसका डिमांड ज़्यादा है क्योंकि उसकी प्राइस कम है. ये लॉ ऑफ डिमांड है फ्रेंड्स. ये लॉ ऑफ डिमांड जो है इट डिपेंड्स ऑन सम 10 assumptions. इट डिपेंड्स ऑन 10 assumptions. विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट पहले आप थोड़ा सा कुछ ये लिख लीजिए. गिव द हेडिंग assumptions to law of demand. कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ लिख दीजिए assumptions to law of demand. In bracket write down point number 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. नंबर का टेंशन मत लीजिए कि सर कुछ भी बोल रहे हैं. हाँ, कुछ भी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स. ये चीटिंग सिखाऊंगा. पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. फ्रॉम determinants of demand remains constant. From determinants of demand remains constant. Close the bracket. Point number 9. सर आप कुछ भी कर रहे हैं. Yes friends, ये टेक्निक सिखाऊंगा. डोंट वरी, एग्जाम के पेपर में हमें ऐसे लिख के नहीं आना है. ये अपना टेक्निक है चीटिंग करने का. क्या हाउ टू रिमेंबर. पॉइंट नंबर 9. नो introduction of new technology. And point number 10. Demanded goods should be normal. फुल स्टॉप. फ्रेंड्स आपको ये टेबल लिखने की जरूरत नहीं है. इन आवर लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस शेड्यूल एज वेल एज वी हैव एक्सप्लेन्ड आल्सो. आज सिर्फ चीटिंग के लिए अब कुछ बातों को ध्यान रखना है. बिफोर आवर 2 सेशंस वी हैव डिस्कस्ड वन आंसर. डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन दिस 11 फैक्टर्स. That is price of goods, income of consumers, price of other goods, taste, nature, habit, custom, fashion, festival, future expectation, size of population, distribution of income and wealth, time, season, period, government policy, money circulation, standard of living. हाश क्या रट्टा मारा है बाकी. Friends, out of these 11 points, मार्शल ने, कौन मार्शल? अरे जिससे पूरा बुक लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स. मार्शल ने हमें ये कहा कि assumptions to law of demand के लिए जो 8 पॉइंट है, फर्स्ट 8 पॉइंट्स वो यहां से चुरा लीजिए. लेकिन कौन से 8 पॉइंट चुराने हैं? तो बोले 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 फ्रॉम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. कौन से 8 पॉइंट चुराने हैं वो याद रखने से अच्छी बात ये है कि कौन से 3 पॉइंट टच नहीं करने हैं वो याद रखो. फ्रेंड्स अगर आप मेरी बात को कंपेयर करके समझ पाओ, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई रिपीट माई स्टेटमेंट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हमें ये चीटिंग समझनी है तो ये आंसर हमने समझ लिया है. भले एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे, मैं श्योर नहीं पूछेंगे, दे वोंट आस्क दिस, ओके, बट दे विल आस्क दिस. तो ये तरीका है आंसर को समझ कर याद रखने का कि आपको लास्ट मोमेंट पे टेंशन ना आए कि भाई इस पे क्या था. तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ तो पॉइंट नंबर 1 जो है 1 प्राइस ऑफ गुड्स, इसको टच नहीं करना है. पॉइंट नंबर 7 जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ,
उसको भी टच नहीं करना है। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 11 जो है उसको टच नहीं करना है। तो पॉइंट नंबर 1, 7 एंड 11 इसको टच नहीं करना है। आप बोलिए काय को टच नहीं करने का? क्या आपके ये अनलकी नंबर है? नहीं फ्रेंड्स, ये सभी मेरे बहुत लकी नंबर है। तो काय को टच नहीं करने का, क्योंकि अगर आप ध्यान से कायदे की शुरुआत को समझ पाए हो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। पहली बात क्लियर थी कि बाकी सब चीजों को आप कांस्टेंट मान लेंगे। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 है प्राइस ऑफ गुड्स। क्या हम कभी ये मान पाएंगे कि जिंदगी भर कोई भी चीज की प्राइस कांस्टेंट रहेगी? नॉट पॉसिबल। और अगर ये मैं मान लूँ कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो फिर प्राइस कम होगी ही नहीं, तो डिमांड बढ़ेगी ही नहीं, तो लॉ ऑफ डिमांड वहीं पे गलत हो गया। मार्शल बहुत स्वार्थी है, इसलिए पॉइंट नंबर 1 को उसे टच ही नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आप सोचिए, क्या आपकी और मेरी इनकम एक सरीकी पॉसिबल है? अरे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप तो अभी भोले नादान ऊपर वाले के नेक बंदे, कुछ कमाते धमाते नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो पढ़ाई करनी होती है। मुझे तो बहुत कमाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे घर के खर्चे निकालने हैं, राइट? तो फिर मेरी और आपकी इनकम एक सरीकी, नॉट पॉसिबल। इसलिए पॉइंट नंबर 7 कांस्टेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। अब कल चला है पॉइंट नंबर 11, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अरे जब आपकी और मेरी इनकम ही एक सरीकी नहीं है तो फिर आपका और मेरा लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक सरीका कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। जब आपकी और मेरी इनकम एक सरीकी नहीं है तो फिर आपकी और मेरी लाइफस्टाइल भी एक सरीकी और कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉइंट नंबर 1, 7, 11 इन तीनों पॉइंट को निकाल दिया। बाकी के जो 8 पॉइंट है उनको कांस्टेंट अज्यूम कर दिया। ओके फ्रेंड्स, टेक्निक समझ लीजिए, क्या आंसर में कैसे लिखेंगे। आप जिसको पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे वो आंसर में अजम्पशंस के लिए पॉइंट नंबर 1 बनेगा। आप जिसको पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हो वो आंसर में अजम्पशन के लिए पॉइंट नंबर 2 बनेगा। वो पॉइंट नंबर 2, 3 यहाँ पे है तो वो अजम्पशन में 1, 2 ऐसा बनेगा। ओके, तो जब आप अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड का आंसर लिखते होंगे तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो 1 बनेगा, 3 जो है वो 2 बनेगा। ऐसा करते करते वो 8 पॉइंट हो गए। ओके, 2 पॉइंट हमने नए लगा दिए ताकि हम पकड़े ना जाए कि हमने चीटिंग किया है। आज मेरे और अल्फ्रेड मार्शल के बीच में वापस एक टसन होगी। अब टसन किस बात को लेकर होगी वो भी क्लियर करूंगी। मार्शल इज द मोस्ट सेल्फिश पर्सन ऑफ द अर्थ। आई रिपीट, मार्शल इज द मोस्ट सेल्फिश पर्सन ऑफ द अर्थ। मैंने इस पृथ्वी पे मार्शल जितना स्वार्थी इंसान देखा ही नहीं है। अपने कायदे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक कुछ भी सोच सकता है। अपने कायदे को बचाने के लिए वो कुछ भी सोचने को तैयार है, कुछ भी अज्यूम करने को तैयार है, कुछ भी अज्यूम करने को तैयार है। अब हर एक पॉइंट पे मेरा और मार्शल का टसन होगा। ओके, लेट मी क्लैरिफाई इट। पॉइंट नंबर 2, मतलब पॉइंट नंबर 2 यहाँ से लेना है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये डिटरमिनेंट था। अब मार्शल क्या बोल रहा है अजम्पशन में कि इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लो, मतलब हम लिखेंगे कांस्टेंट इनकम ऑफ कंज्यूमर्स या फिर नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। ये अपना हेडिंग बन गया। अंदर का मसाला यही रहने वाला है जो प्रिंटेड बुक में दिया हुआ है। ओके, तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, टेक्निक समझ लो तो आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। अब टसन क्या है? मार्शल को सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इससे ज्यादा उसको कुछ समझता ही नहीं। ध्यान से मेरे एग्जांपल याद करते जाएंगे और स्पीड में अब आंसर कवर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। लेट मी रिमाइंड माय एग्जांपल। जब मेरे डैडी का इनकम महीने का 5,000 से कम था तो हम उडुपी रेस्टोरेंट में जाते थे और 90 रुपये में पूरा डिनर खत्म, और पापड़ तो मांगने का ही नहीं। अब जब मैं रेस्टोरेंट में जाऊं तो एसी के बगैर बैठूं नहीं, और 90 रुपये के तो कभी कभार सिर्फ पापड़ खा जाएंगे। तो मेरे एग्जाम्पल में पापड़ की डिमांड कब बढ़ी? जब मेरी इनकम बढ़ी।
तो मैं मार्शल को बोल रहा हूँ कि मार्शल जब मेरी इनकम बढ़ी तो पापड़ की डिमांड बढ़ी। मार्शल बोलता है नहीं सर, जब पापड़ की प्राइस कम होगी ना तो पापड़ की डिमांड बढ़ेगी। मैंने कहा नहीं मार्शल, पापड़ की प्राइस कम नहीं हुई है, मेरी इनकम बढ़ गई ना इसलिए पापड़ की डिमांड बढ़ी। वो बोलता है नहीं सर, पापड़ की प्राइस कम हुई तो पापड़ की डिमांड बढ़ी। अपने आप को बचाने के लिए मार्शल ये मान के चलेगा नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स या फिर कांस्टेंट इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। ये पॉइंट नंबर 2 हमने चुरा लिया है डिटर्मिनेंट से, अजम्पशन में वो पॉइंट नंबर 1 बन जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 जो अजम्पशन में पॉइंट नंबर 2 बनेगा। पॉइंट नंबर 3 प्राइस ऑफ अदर गुड्स इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफी। उस दिन ये एग्जांपल दिया था, अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो टी ड्रिंकर्स विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम टी टू कॉफी। ये सोचेंगे कि जब ज़्यादा पैसा देना ही है तो चाय काय को पिए, कॉफ़ी पिएंगे, स्टेटस का सवाल है। तो मेरे एग्जांपल में अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। मार्शल के हिसाब से, याद है मैंने बीच में कहा था मुझे केमिकल लोचा है, मुझे मार्शल दिखता है, मैं मार्शल से बातें करते रहता हूँ। तो मार्शल के हिसाब से मुझे मार्शल दिख रहा है, मार्शल के हिसाब से जब कॉफ़ी की प्राइस कम होगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। मार्शल के हिसाब से जब कॉफ़ी की प्राइस कम होगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। मैंने कहा मार्शल यू आर बुद्धू, ऐसा नहीं होता है। जब चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। मार्शल बोलता है कॉफ़ी की प्राइस कम होगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। अपने आप को बचाने के लिए मार्शल ये मान के चलेगा नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स या फिर कांस्टेंट प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये पॉइंट नंबर 3 डिटरमिनेंट में हुआ, अजम्पशन में ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 टेस्ट, नेचर, हैबिट, कस्टम, फैशन, फेस्टिवल। चलो एक ही एग्जांपल याद करा दूँ। मैंने कहा था कि जब दिवाली फेस्टिवल होगा तो फटाकों की डिमांड बढ़ेगी। मार्शल के हिसाब से जब फटाकों की प्राइस कम होगी तो फटाकों की डिमांड बढ़ेगी। उसको और कुछ समझता ही नहीं है। मैंने कहा मार्शल अगर दिवाली आएगी ना तो लोग फटाकों की डिमांड करेंगे। बोलता है नहीं सर, जब फटाकों की प्राइस कम होगी ना तो फटाकों की डिमांड बढ़ेगी। मतलब जब जुलाई महीने में फटाकों की प्राइस कम होती है तो हर कोई फटाका फोड़ेगा? अरे नहीं, नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा कि मार्शल जब दिवाली फेस्टिवल आएगा तो फटाकों की डिमांड बढ़ेगी। वो बोलता है नहीं, जब फटाकों की प्राइस कम होगी तो फटाकों की डिमांड बढ़ेगी। अपने आप को बचाने के लिए वो ये मान के चलेगा नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, कस्टम, फैशन, फेस्टिवल। कुछ भी बदलेगा ही नहीं। मतलब उसके हिसाब से इतना बोरिंग लाइफ होगा कि कभी फेस्टिवल आएगा ही नहीं। बुद्धू, मार्शल बुद्धू, कुछ भी सोच लेता है। वो अज्यूम करके चल रहा है कि कोई फेस्टिवल कभी आएगा ही नहीं, देयर इज नो फेस्टिवल एट ऑल। ओके, कितना बोरिंग लाइफ होगा साले का, राइट? ओके, पॉइंट नंबर 5 फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। याद करो मेरा एग्जांपल, मेरी मम्मी का किराने की दुकान पे जाना, शक्कर ना लिखाना, दुकान वाले का डराना कि मैडम एक हफ्ते के बाद प्राइस 5 रुपया बढ़ जाएगा, हैं 5 किलो और भेज दो। मैंने ये कहा कि अगर मम्मी को ये पता चलेगा कि शक्कर की प्राइस बढ़ने वाली है तो मम्मी शक्कर की डिमांड बढ़ा देगी। मार्शल के हिसाब से अगर शक्कर की प्राइस कम होगी तो मम्मी शक्कर की डिमांड बढ़ाएगी। मैं बोल रहा हूँ मार्शल, मम्मी को ये पता चल गया कि एक हफ्ते बाद प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए मम्मी ने शक्कर की डिमांड बढ़ा दी। तो बोलता है नहीं सर, शक्कर की प्राइस कम होगी तो शक्कर की डिमांड बढ़ेगी। मैंने कहा बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन डिमांड ऑफ शुगर विल बी मोर। तो बोलता है नहीं सर, बिकॉज ऑफ लोअर प्राइस डिमांड ऑफ शुगर विल बी मोर। अपने आप को बचाने के लिए वो ये मान के चलेगा नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मतलब मेरी मम्मी को कभी दुकान वाला बताएगा ही नहीं पहले से
कि अगले हफ्ते ये होने वाला है, ऐसा वो कभी नहीं बताएगा, ऐसा मार्शल मान के चलेगा। पता नहीं उसको मेरी मम्मी से क्या दुश्मनी है, काय को दुकान वाला नहीं बताएगा भाई, वो तो बताएगा कि मेरा ऐसा होने वाला है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर पता चल गया कि बाद में प्राइस बढ़ेगा तो लोग अब भी डिमांड बढ़ाएंगे। मार्शल के हिसाब से अगर उसकी प्राइस कम होगी तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे। दैट वाज पॉइंट नंबर 5। ओके, पॉइंट नंबर 6, सबसे खतरनाक पॉइंट ये है अजम्पशन में, साइज ऑफ पॉपुलेशन। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर घर में ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो दूध की डिमांड बढ़ेगी, जितने बच्चे ज्यादा उतनी दूध की डिमांड ज्यादा। मार्शल नहीं सर, जब दूध की प्राइस कम होगी तो दूध की डिमांड बढ़ेगी। मतलब घर पे भले बच्चा रोते रहे, मैं दुकान में आके वेट करूंगा दूध की प्राइस कब कम होगी तो मैं डिमांड करूंगा, ऐसा मार्शल बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, जितना पॉपुलेशन ज्यादा उतना दूध का डिमांड ज्यादा। अकॉर्डिंग टू मार्शल, जितना दूध का प्राइस कम उतना दूध का डिमांड ज्यादा। अपने आप को बचाने के लिए मार्शल ये मान के चलेगा, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 7 को टच नहीं करने का। पॉइंट नंबर 8, टाइम, सीजन, पीरियड। लेट मी रिकैप द एग्जाम्पल। हमने ये समझा था कि मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, इसका डिमांड समर सीजन में ज़्यादा, सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड समर सीजन में ज़्यादा, करेक्ट। मिनी जेरोक्स का डिमांड एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा, कॉपी करने में काम लगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सीजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से डिमांड बढ़े, मिनी जेरोक्स के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। मार्शल बताए नहीं सर, अगर सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस कम होगी तो सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड बढ़ेगी, अगर मिनी जेरोक्स की प्राइस कम होगी तो मिनी जेरोक्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब एग्जाम ना हो तो भी वेकेशन के टाइम पे अगर मिनी जेरोक्स सस्ता हो गया तो हर कोई जाके मिनी जेरोक्स निकालेगा। अरे पर एग्जाम ही नहीं है, अब किधर कॉपी करना है, करेक्ट। तो वो एग्जाम पीरियड होगा तो डिमांड बढ़ेगा मिनी जेरोक्स का, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि प्राइस कम होगी तो मिनी जेरोक्स का डिमांड बढ़ेगा। अपने आप को बचाने के लिए वो ये मान के चलेगा, नो चेंज इन टाइम, सीजन, पीरियड। पॉइंट नंबर 9, गवर्नमेंट पॉलिसी। फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल दिया था पार्ले जी, 4 रुपये 60 पैसे का उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, 40 पैसा अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसका एमआरपी 5 रुपीज़। मेरे एग्जांपल में अगर ये जीएसटी, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, अगर ये जीएसटी, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, ओके, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब से पीवीआर सिनेमा के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया गया है, आइनॉक्स के ऊपर, ओके, फेम रिपब्लिक के ऊपर, जब से एंटरटेनमेंट टैक्स, थिएटर में गए 30 रुपये तो एंटरटेनमेंट टैक्स, कभी कभार 50 रुपया एंटरटेनमेंट टैक्स, तो टिकट महंगी हो गई, इसलिए लोग नहीं जाते, बोले मोबाइल में देख लेंगे, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, जब आप कोई चीज पे टैक्स बढ़ाओगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मार्शल बताए नहीं सर, पार्ले जी के ऊपर टैक्स की वजह से डिमांड कम नहीं हुई है, वो तो उसका प्राइस बढ़ गया इसलिए डिमांड कम। मैंने कहा प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि टैक्स बढ़ा। तो मेरे हिसाब से जब टैक्स बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, मार्शल के हिसाब से जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। अपने आप को बचाने के लिए वो ये मान के चलेगा, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो चूड़ियां पहन के बैठा रहेगा, वो कभी कोई टैक्स बढ़ाएगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। कितनी गलत सोच है उसकी। अपने आप को बचाने के लिए वो मान के चलेगा कि गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। ओके, पॉइंट नंबर 10 जो अपने लिए यहाँ पे है, मनी सर्कुलेशन।
याद करो एग्जाम्पल फ्रेंड्स, विद्या कंठे लक्ष्मी अंठे, विद्या कंठे लक्ष्मी अंठे। जितना हाथ में पैसा ज्यादा उतना हाथ में शॉपिंग करने का खुजली ज्यादा, उतना आप लोग ज्यादा डिमांड करते हो। अगर हाथ में पैसे है तो डिमांड ज्यादा करोगे। एक ऑब्जर्वेशन कभी करना फ्रेंड्स, अगर मेरी ऊपर की जेब में 5000 रुपीज कैश खनकता हो, पैसा खनकता हो, तो वॉकिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। वॉकिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता है। अगर सिर्फ 20 रुपए का नोट होगा, सिर्फ 20 रुपए का नोट होगा, और अगर मैं ओबेरॉय बॉल में राउंड मारूंगा ना, तो हाथ यूं रख के चलूंगा, डरा सहमा सा, कहीं कुछ टच बिच हो गया तो 20 रुपया तो है सिर्फ, अगर कुछ टूट फिट गया पैसा तो है नहीं, मार खाऊंगा अलग से। लेकिन अगर ऊपर की जेब में 5000 खनकता हो तो वॉकिंग स्टाइल भी हुआ है, ये टच किया वो टच किया, नाप लिया कुछ भी, क्योंकि पैसे खनक रहे हैं। लक्ष्मी अंठे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मार्शल, जितना हाथ में पैसा ज्यादा उतना हम ज्यादा डिमांड करते हैं। बिंदास मॉल से सामान खरीदूंगा क्योंकि पैसे वाला हूं। मार्शल के हिसाब से अगर मॉल के सामान की प्राइस कम होगी तो मॉल के सामान की डिमांड बढ़ेगी। मार्शल के हिसाब से मॉल के सामान की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। मैं बोलता हूँ नहीं मार्शल, अगर मेरे पास पैसे खनकते तो मॉल के सामान की डिमांड बढ़ेगी। अपने आप को बचाने के लिए वो ये मान के चलेगा, नो चेंज इन मनी सर्कुलेशन। फ्रेंड्स, ये 8 पॉइंट अपने चुराए हुए हैं फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब 2 नए पॉइंट है ताकि हम पकड़े ना जाए, टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कुछ कॉपी किया है। ओके, चीटिंग करो पर पकड़े कभी मत जाओ। पॉइंट नंबर 9 इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखो मार्शल की हद तक स्वार्थी है, वो ये मान के चलेगा कि दुनिया में कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी ही नहीं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, क्योंकि ये नया पॉइंट आपके लिए। फ्रेंड्स, आज से करीब 22-23 साल पुरानी बात करूँ, जब इंडिया में पहली बार मोबाइल ने एंट्री मारी, सेलफोन मोबाइल ने एंट्री मारी, तब से मैं सेलफोन यूज़ कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक बात सोचते हैं ऐसी, मोबाइल से पहले पेजर करके एक चीज़ आती थी जिसमें कोई फ़ोन कॉल नहीं होते थे, सिर्फ मैसेज आ सकता था, मैसेज जाएगा भी नहीं। सपोज मेरे पास पेजर है, पैनासोनिक कंपनी इसको बनाती थी, 3000 रुपीज़ उसका कॉस्ट था, और हर महीने 250 रुपया देने का बीपीएल कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर मेरे पास पेजर है, उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं सबके पास, अगर आपके पास मेरा पेजर नंबर है, इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, तो आप क्या करेंगे, अपने लैंडलाइन फ़ोन से या पीसीओ से या लैंडलाइन फ़ोन से पेजर नंबर पे डायल करेंगे और ऑपरेटर को एक मैसेज छोड़ेंगे, कॉल मी अर्जेंटली। मुझे यहाँ पे सिर्फ पेजर में बीप बजेगा और लिखा आएगा कॉल मी अर्जेंटली, और नीचे आपका नंबर आएगा। मतलब मैं चालू लेक्चर छोड़ के पीसीओ जाऊँगा, आपको कॉल करूँगा कि प्रशांत सर बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन से मुझे मैसेज आया है, बोलिए क्या काम है। आप बोलेंगे सर वो 12th का लेक्चर कब भेजेंगे वीडियो लेक्चर, वही पूछना था। तेरे देश की टांग, एक तो पीसीओ में जाके 1 रुपया बिगाड़ा वो अलग, और 300 रुपये का लेक्चर का नुकसान किया वो अलग। फ्रेंड्स, 3000 का पेजर मिलता था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पेजर कभी इस्तेमाल नहीं किया। जब मोबाइल ने एंट्री मारी, और जो वेरी फर्स्ट मोबाइल उस जमाने में था वो मैंने लिया 9000 रुपीज़ का, सोनी एरिक्सन कंपनी का। जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बार सोच के देखिए, 3000 में पेजर मिलता रहा, मैंने कभी नहीं खरीदा है, पर 9000 का मोबाइल मैंने खरीदा। मार्शल के हिसाब से अगर पेजर की प्राइस कम होगी तो पेजर की डिमांड बढ़ेगी, राइट फ्रेंड्स। मोबाइल ने एंट्री मारा ना, विद इन 6 मंथ्स पैनासोनिक कंपनी ने पेजर का प्राइस 1500 रुपया कर दिया। 3000 के बड़े सीधा 1500। क्या डिमांड बढ़ी होगी? नहीं बढ़ी फ्रेंड्स। 1.5 साल बाद उन्होंने प्राइस 700 रुपया कर दिया, तो भी डिमांड नहीं बढ़ी। आखिरकार कंटाल के पैनासोनिक कंपनी ने पेजर का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया फ्रेंड्स, टोटली शट डाउन, फैक्ट्री बंद कर दी। लोग 1500 का या 700 का पेजर खरीदने को तैयार नहीं थे, लेकिन 32,000 का मोबाइल खरीदने को तैयार थे।
क्योंकि मोबाइल न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें कॉल का आना जाना पॉसिबल था, कैमरा पॉसिबल था, गेम खेलना पॉसिबल था, एफएम रेडियो पॉसिबल था। उस वक्त स्मार्टफोन तो नहीं थे। तो ये जो लॉजिक था, मार्शल को ऐसा लगता है कि अगर पेजर की प्राइस कम होगी तो पेजर की डिमांड बढ़ेगी। मैंने कहा मार्शल ऐसा नहीं हुआ, पेजर की प्राइस कम हुई पर पेजर की डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड मोबाइल सेलफोन की बढ़ी, बिकॉज इट वॉज न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अपने आप को बचाने के लिए मार्शल ये मान के चलेगा नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब दुनिया कभी भी पेजर से मोबाइल तक पहुंचेगी ही नहीं, ऐसा वो मान के चलेगा। पॉइंट नंबर 10, डिमांडेड गुड्स शुड बी नॉर्मल। डोंट बी कंफ्यूज कि सर ये पॉइंट नंबर 9 10 दो बार क्यों आए? वो 9 10 डिटरमिनेंट्स के थे, मतलब आंसर में वो पॉइंट नंबर 8 तक जाएगा, इसलिए पॉइंट नंबर 9 10 ये नए पॉइंट है। नाउ लास्ट पॉइंट इज डिमांडेड गुड्स शुड बी नॉर्मल। आप बोलेंगे सर हम कोई एबनॉर्मल गुड्स खरीदते हैं? हम थोड़ी रिया चक्रवर्ती है जो ड्रग्स खरीदे। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझना, अगर किसी को डायबिटीज हुआ हो, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता हो, इंसुलिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको रोज का 2 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और अगर सपोज 150 रुपये का एक इंजेक्शन है, मतलब दिन में 300 रुपये का तो उनको इंजेक्शन लेने का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सपोज इंसुलिन के इंजेक्शन की कंपनी ने अपना प्राइस चेंज कर दिया। ध्यान से सुना फ्रेंड्स, अगर उन्होंने प्राइस 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया या 250 रुपया कर दिया, तो मार्शल के हिसाब से तो अगर इंजेक्शन की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। मतलब पेशेंट जाके डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर इंजेक्शन बहुत महंगा है, मैं 1 ही लूँ चलेगा? उल्टा सोचो और मजा आएगा। सपोज इंसुलिन की कंपनी ने प्राइस 150 से कम करके 100 रुपया कर दिया, तो पेशेंट खुश हो गए, डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर मैं रोज के 3 लूँ, 2 के बदले बहुत सस्ता इंजेक्शन। और अगर ऐसा प्राइस कम हो जाएगा तो क्या डिमांड बढ़ जाएगा? 2 के बदले तो ये 3 इंजेक्शन लेगा कोई। अरे नो वन कैन डू दिस। मैं बोल रहा हूँ कि मार्शल ऐसा इंसुलिन का जो इंजेक्शन है उस मामले में प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी ऐसा नहीं होगा। मार्शल के हिसाब से अगर इंसुलिन की प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड यही बोल रहा है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन ये नॉर्मल गुड्स नहीं है, ये उन डायबिटिक पेशेंट्स की मजबूरी है। तो कितना भी प्राइस बढ़े उनको तो ये लेना ही है। तो अपने आप को बचाने के लिए मार्शल ये मान के चलेगा कि डिमांडेड गुड्स शुड बी नॉर्मल। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 8 मार्क का आंसर कंप्लीट होगा लॉ ऑफ डिमांड का, जहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर शेड्यूल बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और बाद में अजम्पशंस पे जाएंगे। सो अजम्पशन नहीं पूछा था, वापस बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में अजम्पशन वर्ड मेंशन हुआ है तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जो प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है, और अगर अजम्पशन वर्ड नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ पॉइंट्स लिख कर आएंगे। उसका तरीका चीटिंग मैंने सिखाया कि डिटरमिनेंट के 11 पॉइंट में से 1 7 11 को भूल जाओ, 2 3 4 5 6 8 9 10 8 पॉइंट हुए, उसको कॉन्स्टेंट अज्यूम कर दिया और 2 पॉइंट नए लगा दिए। तो दैट इज द आंसर, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ assumptions. That's enough for this session. Please take care of yourself. Soon I'll approach you again. Thank you so much.